Hello students, today we are going to discuss problem number 4 and here I am going to read the problem. Mr. Deep and Mr. Karan were in partnership sharing profit and losses in the proportion of 3:1 respectively. Mr. Deep and Mr. Karan were in partnership sharing profit and losses in the proportion of 3:1 respectively. So here the old partner is Mr. Deep and Mr. Karan. They are the old partners and the old ratio is 3:1. The balance sheet as on 31st March 2018 stood as follows. Now here they given us balance sheet. Now look at the balance sheet, the liability side of it, sundry creditor, bills payable, bank overdraft, capital account and general reserve. So here the general reserve we have to distribute among the old partner in the old ratio. Asset side cash, sundry debtor, land and building, stock, plant and machinery and furniture. Now look at the adjustment. They admitted Shubham. So who is the new partner? Shubham is the new partner. They admitted Shubham into partnership on 1st April 2018. The term being that he shall have to bring in 20,000 as his capital. Now Shubham is bringing 20,000 as a capital. So capital हम किस अकाउंट से दिखाएंगे? कैश. For 1/4 share in future profit and 10,000 as his share of goodwill. So the goodwill is 10,000. Goodwill कितना है? How much it is? Goodwill is 10,000. A provision of 5% doubtful debts to be created on sundry debtor. So there is adjustment on sundry debtor. Furniture to be depreciated by 20%. So again furniture has adjustment. Stock should be appreciated by 5%. So stock क्या हो रहा है? Appreciate हो रहा है. And building to be appreciated by 20%. So building appreciate हो रहा है मतलब building के ऊपर भी क्या है? Adjustment है. See the 5th number adjustment. Here I am reading the adjustment. Capital account of all partners be adjusted in their new profit sharing ratio through cash account. Now what is this? What is this adjustment? So when students, when new partner entered into partnership firm, at that time sometimes the partner agree to readjust their capital so as to be proportionate to their profit sharing ratio. Okay, means in such a situation the capital of new partner is given, the same can be used as base for calculating the new capital of old partner. Means here while calculating the new capital of old partner, the old partner take the new partner's capital as a base. तो यहाँ पे जो बेस है वो क्या है? न्यू पार्टनर का कैपिटल है. एंड जो भी एडजस्ट करके जो भी कैपिटल आएगा तो उसका जो एक्सेस होगा, एक्सेस in the old partners capital through, now here they adjust it through cash account. तो वो एडजस्ट किया जाता है. जो भी एक्सेस आएगा कैपिटल अकाउंट में वो अभी यहाँ पे हमें किससे एडजस्ट करना है? थ्रू कैश अकाउंट. कैश अकाउंट से एडजस्ट करना है. सो कैपिटल एडजस्टेड मीन्स वी कैन से दैट कि एक न्यू कैपिटल फॉर्म करना है फॉर द ओल्ड पार्टनर और बेस क्या लेना है? न्यू पार्टनर का कैपिटल. ओके, तो बेस यहाँ पे हमें न्यू पार्टनर का कैपिटल लेना है, दैट इज 20,000 और न्यू पार्टनर का शेयर 1/5. इससे हमें कैलकुलेट करना है द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल. सो फॉर दैट वी हैव टू गो स्टेप वाइज. पहले न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा. न्यू रेशियो के बाद टोटल कैपिटल एंड टोटल कैपिटल के बाद एवरी पार्टनर का कैपिटल, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल. इस तरीके से स्टेप वाइज जाके आपको ये करना है. ओके, so here in this problem we are going to prepare profit and loss adjustment account, partners capital account, balance sheet,
and in working note we are preparing cash account. So start from the problem, and as you know, I always start from the balance sheet liability side. So see the liability here the first is sundry creditor, and sundry creditor के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है. सो लाइबिलिटी में हमें इसको लिखना है sundry creditor, leave at least 4 lines for capital account, and then you can write. So write the amount of sundry creditor in outer column because there is no adjustment on it. So 40,000 is the amount. See, 40,000 is the amount. तो हमने ये outer column में लिख दिया. See the next, bills payable. Bills payable again below the sundry creditor because this is balance sheet, and here we are preparing new balance sheet as on 1st April 2018. So write bills payable here. Take the amount in outer column because again no adjustment on it. So 10,000. See the next, bank overdraft. Bank overdraft is again the liability. So write here bank overdraft and take the amount in outer column 11,000. Okay. So capital account की पोस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में होती है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 एंड 20,000. देन जनरल रिजर्व 8,000. जनरल रिजर्व वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड रेशियो. So the old ratio is 3:1. So 8,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है. कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 8,000 डिवाइडेड बाय 3 + 1 मतलब कि 4. So 8,000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2,000. So 2,000 into 3 and 2,000 into 1. ऐसे करके आप दीप एंड करण का जनरल रिजर्व निकाल सकते हैं. तो जनरल रिजर्व की पोस्टिंग कहाँ पे होती है? अगेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व, and amount for Deep is 2,000 into 3, that means 6,000, and 2,000 into 1 means 2,000. So general reserve इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया 6,000 and 2,000. सीधा असेट साइड कैश हम कैश का अलग से अकाउंट बनाएंगे वर्किंग नोट पे. कैश अकाउंट डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000. द नेक्स्ट सन्ड्री डेटर असेट में ही आएगा न्यू बैलेंस शीट में. sundry debtors, and we have to write the amount in inner column because it has adjustment. So write amount in inner column. The next is land and building. Leave one line and then write land and building. Land and building, again we have to write the amount in inner column because it has adjustment. The next is stock. Leave one line for adjustment and then write stock and take the amount in inner column because stock has adjustment. The next is plant and machinery. So plant and machinery भी asset में ही आना है बैलेंस शीट में. And we have to write the amount in outer column because it has no adjustment. So amount is 30,000. Like that we have to write in outer column. The next is furniture. Write furniture below plant and machinery. And here we have to take amount in inner column because furniture has adjustment. So like this बैलेंस शीट का पूरा पोस्टिंग हमने कर लिया. तो यहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया है? पोस्टिंग किया है. नाउ कम टू द एडजस्टमेंट. अभी हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे.
they admit Shubham into partnership on 1st April 2018. The terms being that, so new partner is Shubham. See the first one, he shall have to bring in rupees 20,000 as his capital. So how much capital Shubham bring? 20,000. So इसके दो इफेक्ट हमें करने हैं. शुभम 20,000 कैपिटल लेकर आया तो पैसा फर्म में आ रहा है. So cash comes in. That's why cash account debit side to Shubham's capital account. Now here we are writing Shubham capital. Why? Because this cash is bringing by Shubham and amount is 20,000. And the second effect, one effect is debit here, second effect partners capital credit. तो एक इफेक्ट अगर डेबिट हो रहा है, सेकंड इफेक्ट यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में क्या होगा? क्रेडिट होगा. बाय. नाउ हियर वी हैव टू राइट कैश अकाउंट. यहाँ पे हमें क्या लिखना है? बाय कैश. एंड राइट द अमाउंट इन शुभम कॉलम बिकॉज ये कैपिटल शुभम ने लाया है. So 20,000. Then the next is he shall have to bring in 20,000 as his capital for 1/5 share in future profit and 10,000 as his share of goodwill. So शुभम को गुडविल कितना लेकर आना है? 10,000. अगेन कैश कम्स इन. तो कैश कम्स इन है, इसके लिए कैश अकाउंट डेबिट साइड. Now here we have to write goodwill because cash जो है वो goodwill में आ रहा है. Goodwill account and write the amount 10,000 and the second effect goes to partners capital credit side by goodwill. यहाँ पे हमने goodwill का अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया है. दैट इज वाई गुडविल की इफेक्ट आपको गुडविल के अकाउंट के मैं नहीं बता रही हूँ, बट जो इंपॉर्टेंट इफेक्ट है वो मैं आपको बता रही हूँ कि पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय गुडविल. एंड गुडविल जो है वो हमें ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करना है. बट इन दिस प्रॉब्लम दे आर नॉट गिवन अस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. दैट इज वाई द ओल्ड रेशियो इज कंसिडर्ड एज सैक्रिफाइस रेशियो. तो हमें ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइस रेशियो कंसिडर करना है. सो गुडविल इज 10,000 एंड द रेशियो इज 3:1. सो 10,000 डिवाइडेड बाय 3 plus 1. 3 plus 1 मीन्स 4. तो आंसर आता है 2,500. सो 2,500 इंटू 3 आप करोगे तो आपको अमाउंट जो है वो आएगा 7,500 एंड अगेन इंटू 1 करोगे तो 2,500. तो 10,000 को हमने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर में इन द अभी ओल्ड रेशियो से. सी द सेकंड नंबर, अ प्रोविजन फॉर 5% डाउटफुल डेब्ट्स टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर. आरडीडी ऑलवेज लेस होता है. यहां से एक जीरो हम निकाल लेते हैं तो 3,200 जो है वो 10% है. 3,200 का अगर आप हाफ करते हो तो क्या आता है? 1,600 एंड दैट इज 5%. सो कुछ अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो. 1,600 इज द आरडीडी एंड अगर आप लेस करोगे तो आउटर कॉलम में अमाउंट आती है 30,400. सी द फर्स्ट इफेक्ट, ये एक इफेक्ट हो गया. सेकंड इफेक्ट आपका कहां पे होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. तो व्हेन असेट डिक्रीज तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट. दैट इज वाई 2 आरडीडी एंड अमाउंट आएगा यहाँ पे 1,600. ओके, तो ये एक इफेक्ट हो गया सन्ड्री डेटर का. सी द नेक्स्ट,
furniture to be depreciated by 20%. So furniture 11,000 है, depreciation that means less depreciation. तो देखो यहाँ से आप एक जीरो निकाल लोगे तो 1100 आ रहा है. 1100 इज 10%. 1100 में और आप 1100 प्लस कर दो तो वो क्या हो जाएगा 20%. दैट मीन्स 2200. तो अमाउंट कितना आ रहा है 20% डेप्रिसिएशन मीन्स 2200 एंड 11,000 माइनस 2200 करके आंसर आएगा 8,800. अगेन फर्नीचर दैट मीन्स असेट डिक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड. अमाउंट 2200. ये हम डेबिट में क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट फर्स्टली. एंड नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन. अगर लॉस हो रहा है तो वो डेबिट में लिखो. अगर असेट डिक्रीज हो रहा है दैट मीन्स इट इज अ लॉस है. दैट इज वाई ये कहाँ पे आ रहा है? डेबिट में आ रहा है. तो ये इसके पीछे का रीजन है. सी द नेक्स्ट fourth number, stock should be appreciated by 5% and building be appreciated by 20%. So stock and building दोनों भी appreciate हो रहा है. stock कितने से appreciate हो रहा है? 5% से. तो पहले वो कर लेते हैं. stock appreciate हो रहा है that means हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? ऐड करना पड़ेगा. appreciation कितने से हो रहा है? stock should be appreciated by 5%. So calculate 5% on 20,000. 20,000 का एक जीरो आप निकाल लो. 2000 हो गया. ये 10% है. 2000 का हाफ मीन्स 1000. ये 5% है. एंड इन आउटर कॉलम अगर अप्रिशिएट कर रहे तो 20,000 प्लस 1000 मीन्स 21,000. नाउ असेट अप्रिशिएट हो रहा है. असेट इंक्रीज. सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट. तो क्या लिखेंगे? बाय stock. Buy stock and amount is 1000. यहां तक हो गया. See the next, building appreciated by 20%. So right here appreciation means add. Building appreciate कितने से हो रहा है? 20% से. So 16,000 का 20% कितना आता है? 3,200. एंड अप्रिशिएट किया दैट मीन्स प्लस करना है. तो 16,000 प्लस 3,200 मीन्स 19,200. क्रेडिट साइड. बाय लैंड एंड बिल्डिंग एंड अमाउंट कितने से इंक्रीज हो रहा है? 3,200. ये हो गया असेट इंक्रीज. सी द नेक्स्ट, capital account of all partner be adjusted in their new profit sharing ratio through cash account. Now यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? न्यू कैपिटल फाइंड आउट करना है ऑफ ओल्ड पार्टनर. और इसके लिए बेस क्या लेना है? 20,000 जो कि न्यू पार्टनर का कैपिटल है. तो ये करने के लिए हमें क्या करना है? देखो यहाँ पे क्या दिया है? कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इसका मतलब कि आपको पहले तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो पहली स्टेज हमारी ये है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करो. उसके बाद टोटल कैपिटल एंड उसके बाद ओल्ड पार्टनर का कैपिटल. इस तरीके से करना है. तो मैंने वर्किंग नोट प्रिपेयर किया है इसका. So here is the working note of fifth adjustment. See the calculation of new ratio. Means for the fifth adjustment we have to first calculate the new ratio, and the formula of new ratio is old ratio into balance of 1. So for this we have to first calculate balance of 1. So see the first one, balance of 1. Balance of 1 is equal to 1 minus share of new partner. So in this problem, the share of a new partner is 1/5. See here they given in the first adjustment 1/5 share in future profit. So share of new partner is 1/5.
So balance of 1 is equal to 1 minus 1/5. Now माइनस और प्लस अगर करना है तो आपको क्या करना है, यू हैव टू इक्वल द डिनोमिनेटर. हियर 1 मीन्स 1/1, तो यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर इक्वल करना है. यहाँ पर भी आपको 5 लाना है, 1 की जगह पे 5 डिनोमिनेटर लाना है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5. आपको ऊपर एंड नीचे दोनों जगह पर 5 से मल्टीप्लाई करना है. तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 5/5 माइनस 1/5. तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो गए, इक्वल हो गए. तो अभी आप माइनस कर सकते हो. तो 5/5 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 4/5. तो आपका बैलेंस ऑफ 1 इज 4/5. नाउ यू कैन कैलकुलेट द न्यू रेशियो. Again, what is the formula of new ratio? Old ratio into balance of 1. So here first we calculate the deep new ratio. Deep new ratio is equal to 3/4 is the old ratio of deep. कैसे 3/4 है? See here, the old ratio is 3:1. मतलब कि deep का शेयर इसमें क्या है, 3/4 and current का शेयर क्या है, 1/4. तो यहाँ पे deep का रेशियो क्या हो गया, 3/4 इंटू 4/5. 4/5 इज द बैलेंस ऑफ 1. तो ये 4 और ये 4 दोनों 4 क्या हो गए, कट हो गए. एंड आपका जो न्यू रेशियो है 3:5, ये आपको मिल गया. करंट न्यू रेशियो सेम आपको कैलकुलेट करना है, लाइक डीप न्यू रेशियो 1/4 इज द ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ 1 दैट इज 4/5. सेम ये 4 यहाँ से कट हो रहा है and you get the new ratio that is 1/5. Now see here the denominator is 5, again here the denominator is 5 and शुभम का जो रेशियो है उसमें भी डिनोमिनेटर 5 है. तो आपको शुभम का कोई अलग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल है. तो शुभम का भी न्यू रेशियो 1/5 हो गया. इस तरीके से जो न्यू रेशियो ये क्या हो गया, 3:1:1. This is the new ratio, 3:1:1. So once you calculate new ratio, you have to calculate the total capital. Total capital आप कैसे निकालेंगे, you have to take base of new partners capital. So total capital का फॉर्मूला क्या है, reciprocal of new partner shares into new partners capital. So reciprocal of new partner share, न्यू पार्टनर का शेयर क्या है, 1/5, उसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, 5/1 हो गया इंटू न्यू पार्टनर्स कैपिटल दैट इज 20,000. सो 5 into 20,000 इज द 1 lakh. सो टोटल कैपिटल इज 1 lakh. टोटल कैपिटल क्या आ रहा है, 1 lakh आ रहा है. तो यहाँ पे हमें दीप और करण दोनों का टोटल कैपिटल में से हिस्सा निकालना है. तो दीप कैपिटल बैलेंस 3/5, ये जो न्यू रेशियो आपने निकाला है यहाँ पे दीप का, देखो 3/5, ये 3/5 यहाँ पे लिया इंटू 1 lakh. तो दीप का जो न्यू रेशियो है इंटू टोटल कैपिटल 1 lakh, ऐसे करेंगे आपको मिलता है दीप का कैपिटल बैलेंस दैट इज 60,000. एंड सेम वी हैव टू डू फॉर करंट कैपिटल बैलेंस 1/5. देखो यहाँ पे करंट का न्यू रेशियो 1/5 है, 1/5 इंटू 1 lakh. तो आपको क्या मिला, ₹20,000 इज द करंट कैपिटल बैलेंस. ये दोनों कैपिटल वंस यू फाइंड आउट आपको इसकी पोस्टिंग करनी है. पोस्टिंग कहाँ पे करनी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. एंड व्हाट यू हैव टू राइट फॉर दिस कैपिटल बैलेंस, टू बैलेंस कैरीड डाउन. ये बैलेंस कैरीड डाउन है. तो दीप का कितना आ रहा है, 60,000 एंड करण का 20,000. ओके, तो आपको शुभम का तो पहले से ही पता है, शुभम का क्या है 20,000. तो शुभम का आएगा यहाँ पे 20,000. तो क्या लिखना है, टू बैलेंस कैरीड डाउन. Here two balance carried down, Deep 60,000, Karan 20,000 and Shubham 20,000. So now we have to calculate the profit and loss from the profit and loss adjustment account. So firstly we have to close it because सारे adjustment हो गए हैं. Now first close the profit and loss adjustment account. So the total of credit side is 4,200 and because क्रेडिट साइड इज बिगर देन द डेबिट, तो क्रेडिट साइड की टोटल हम लोग यहाँ पे लेंगे
एंड जो डिफरेंस आता है डेबिट साइड में वो कितना आ रहा है, 400 इज द डिफरेंस। डिफरेंस जो है वो 400 आता है, दिस इज कॉल्ड एज प्रॉफिट। ये डेबिट में आ गया है तो ये क्या हो गया, दिस इज प्रॉफिट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू दीप एंड करंस कैपिटल। वाई दीप एंड करंट, बिकॉज जो प्रॉफिट और लॉस आता है वो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करना है। सो हियर वी हैव टू राइट दीप्स कैपिटल अकाउंट। Dip's capital account and current capital account. Now this 400 we have to distribute among this old partner in the old ratio, that is 3:1. So 400 को आप 3:1 में डिवाइड करते हो तो आता है दीप का 300 एंड दीप का 300 एंड करंट का 100। तो ये आपको ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल में। डेबिट में आया है, यहाँ पे जाते वक्त कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। सो राइट हियर बाय profit and loss adjustment account. Buy profit and loss adjustment account and write the amount $300 and current $100। तो ये दोनों का हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। नाउ वी हैव टू क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ डू द टोटल ऑफ शुभम। करण का कॉलम, करण के कॉलम की टोटल आती है 24,600। दीप के कॉलम की टोटल आती है 73,800। तो यही टोटल हम यहाँ पर भी लेकर आए डेबिट साइड में, बिकॉज क्रेडिट साइड इज बिगर देन डेबिट साइड। नाउ जो भी यहाँ पे डिफरेंस आएगा उसे हम क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। सो वॉट एवर डिफरेंस कम उसको हम कैसे एडजस्ट कर रहे, कैश अकाउंट में। वाई, बिकॉज दे गिवन इन द एडजस्टमेंट दैट capital account of all partner be adjusted in their new profit sharing ratio through cash account। तो यहाँ पे कैश अकाउंट लिखा है, दैट इज वाई जो डिफरेंस है, एक्सेस अमाउंट आ रहा है, उसको हम कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, थ्रू कैश अकाउंट। सो द डिफरेंस कितना आता है यहाँ पे, तो दीप का डिफरेंस आ रहा है 13,800 एंड करण का 4,600। ये हम लेकर जाएंगे बैलेंस शीट लायबिलिटी कैपिटल अकाउंट में, लायबिलिटीज में कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में दीप, करण एंड शुभम। सो दीप का कैपिटल है 60,000, करण 20,000 एंड शुभम अगेन 20। शुभम का 20,000 ऐसे करके आउटर में 1 लाख। नाउ वी हैव टू क्लोज कैश अकाउंट ऑल्सो। तो कैश अकाउंट देखो यहाँ पे ये कैश जो है ये 13,800 एंड 4,600। पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में यहाँ पे टू कैश अकाउंट है 13,800 एंड 4,600। मतलब कि ये कैश फर्म से गया तो इसकी एंट्री यहाँ पे आपको करनी है बाय कैश अकाउंट में, क्रेडिट साइड में बाय दीप्स कैपिटल अकाउंट एंड बाय करंस कैपिटल अकाउंट। दीप का कितना है देखो 13,800 एंड करण 4,600। तो ये अमाउंट फर्म से गए। तो अभी आपको यहाँ पे कैश का बैलेंस निकालना है, 40 + 20 + 10 दैट इज 70,000। यही 70,000 आपको यहाँ पे लिखना है। एंड सी जो बैलेंस आ रहा है वो कितना है,
दिस इज बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये आपको असेट में यहाँ पे लिखना है। कैश 51,600। तो ये आपका पूरा अभी नाउ बैलेंस शीट खत्म हो गया, पूरा बैलेंस शीट हो गया। अभी ये आपका पूरा बैलेंस शीट हो गया। नाउ यू हैव टू क्लोज इट। तो मतलब अभी आपको ये टैली करना है और ये टैली होता है 1,61,000 से। तो इस तरीके से ये पूरा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 4। आप घर पे एक बार सॉल्व करके देखो इस प्रॉब्लम को। आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। ओके बाय देन।